So today here in this video we are discussing about the remaining portion of the evolution chapter, and to start the discussion, the first topic that we will discuss is the Hardy-Weinberg principle. And in Hardy-Weinberg principle we will know that what are the factors which is responsible for causing evolution. Okay, so there is a very swift way, or there is a very simplistic way I can say, in order to say that the evolution is happening or not in a population, and that simplistic way was founded by Hardy and Weinberg. Okay, so what is Hardy and Weinberg principle? It says that in a population, you have a population, okay, you have a particular geographical location, and there you have a population of different species. You can say, suppose Assam. In Assam, like there are so many, there is a particular number of population in Assam of all the individuals of different species, not only just human but also birds, this, that, insects, blah blah blah. So in every geographical location there are a particular number of species living, okay, and those species which are living togetherly can be collectively called as population. So in that population the evolution is happening or it is not happening. How do you know that? You know that when their allelic frequency changes. Now what is allelic frequency and what is that change and how it is related with evolution, that we will discuss slowly. First, some introduction. Hardy-Weinberg principle, it was proposed by G.H. Hardy and W. Weinberg in 1908. Okay, a population. Now what does this principle say? What is the definition of this principle? A population is said to be genetic equilibrium if it is not undergoing any kind of evolutionary change. There is a population and then there is no changes in that population. There are no new characters coming, there is no old characters going away. If nothing of such is happening, then you can say that population is in genetic equilibrium state and it is not undergoing any kind of evolution. If it is undergoing any kind of evolution, then there should come some physiological changes in these animals. Okay, if there is no such physiological changes, no new characters coming, no old characters going away, then no evolution is happening and their allelic frequency, their genetic condition is accepted to be in a stable condition, and when it is in a stable condition, no evolution is occurring. Okay, now how that stability will go away, okay, that we will discuss later. Now the few important characters of Hardy-Weinberg principle. Allele frequencies in a population are stable and constant from generation to generation. I hope you have discussed about chromosomes, is not it? So you have discussed about chromosomes. So we know that chromosomes, in chromosomes there are present gene is represented by allele, is not it? So alleles are either homozygous, heterozygous. ये सब principle of inheritance chapter में आप लोगों ने पढ़ा है. So allelic frequency, okay, because the characters which is expressed by a gene depend on its allele, is not it? You have studied about heterozygous, homozygous, allele and all. Okay, so allelic frequencies are going to stay stable and constant if no evolution is occurring. There will be no allelic changes. Alleles are going to stay same. They are going to express the same kind of proteins, and there will be no any significant changes we will see in that particular population. The gene pool remains constant. Okay, so if the allelic frequency remains constant, then the gene is also not changing. Allele is a property of a gene. If the gene frequency stays constant, that also shows that why it is staying constant, because there is no change in allelic frequency. No new alleles are getting introduced, no new alleles are being formed, no allelic frequency is altered. Everything is very same and simple and similar. Okay, so gene pool remains constant, called a genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequency of a gene. If we take a gene, is not it? Suppose this is a chromosome and we consider a gene of this particular locus or loci. Okay, so here we know that here either we will have a dominant allele or we are going to have a recessive allele. Okay, so if we consider this to be a homozygous chromosome, then there is a chance that in this chromosome, if we consider two particular loci, then there is a chance that it can be what? Two capital A, that is two dominant allele or two recessive allele. Okay, or if it is heterozygous, then there will be one dominant and one recessive. Okay, so considering these things, okay, if you consider the probability of allelic frequency of a gene, okay, then it is going to stay 1. Okay, the possible frequency of above mentioned genotypes are AA, which I said AA, or small a or
capital A, small a. Okay, so this is your homozygous dominant, homozygous recessive, and heterozygous allelic frequency that we have seen over here. Okay, which are represented by p square, q square, and 2pq. Okay, because if we consider it in a form of a whole chromosome, then what you will do, p into p. Okay, so if you need to find out that in these two particular loci of a chromosome, okay, if you need to find out that what are the possible type of alleles present, then what will you do? You are just going to multiply a and a. So a into a, it is going to come as what? A square, small a, okay, small a square. So that is represented by p square, q square. And if you are going to take a probability of what to say, if you are going to take a probability of a heterozygous thing, then कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है, उसका अगर करेंगे तो हम लोगों को ट्वाइस पी क्यू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला में ये पी स्क्वायर इज टेलिंग अबाउट homozygous dominant, okay, this is saying us about homozygous recessive, and this is saying us about heterozygous individual. So the definition and the idea is that in a population there can be some alleles in one individual which can be homozygous dominant, there can be some allele in an individual which can be homozygous recessive, there can be some alleles in a individual which can be heterozygous, but whatever is the type of the allele, in whatever condition they are, homozygous dominant or homozygous recessive or heterozygous, but their frequency is always going to stay constant, and this is going to stay 1. If there occurs any change in these of the allelic frequencies, then this value is also going to change. If there occurs any addition of a new allele, this value is going to go 1 plus. If there occurs a deletion of any particular allele, then this will go into a negative, माने 1 से नीचे point में चला जाएगा, ठीक है नहीं। So if this one gets disturbed, it gets higher or it gets lower, that confirms that there has occurred some kind of allelic disturbance, and whenever there occurs an allelic disturbance, this proves that evolution is happening. Now we will discuss some of the factors which can disturb this allelic frequency, this constant. It can take it ahead, it can bring it lower. So what are those factors which can disturb this allelic frequency and can make a evolution happening in a particular population? Because ये change होगा तभी evolution होगा, ये change नहीं होगा तो evolution भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी factors क्या क्या है which can disturb Hardy-Weinberg principle, which can disturb the allelic constant, and these factors will bring some kind of change in a population. These factors are going to cause what? Evolution. It is going to bring some changes. Now what are those factors that we will study? Okay, so make notes. So as we are discussing the factors that can affect the Hardy-Weinberg principle, that is that can disturb that constant of 1. So what are the factors? क्योंकि डिस्टर्ब होगा तो इवोल्यूशन होगा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है माने जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन है, नो इवोल्यूशन इज ऑकरिंग. सो क्या क्या फैक्टर्स है जो डिस्टर्ब करेगा? पहला है जीन माइग्रेशन. क्या बोला जा रहा है? द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर कैन अपसेट द जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है. ये पॉपुलेशन यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली, नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंगली दे आर एडेप्टेड टू लिव ओवर हियर, एंड देन देयर इज a population living here which is adapted to इस जगह का geographical location. Now suppose this place is a hot place, so all the animals here are adapted to live in a hot environment. This place is a cold place, all the animals, all the population living here are adapted to live in a cold condition. So obviously they will look different from them, they will have a different allelic frequency, both the population. Now इस population से कोई इस population में जाके घुस जाए, ठीक है, यहाँ से हो इमिग्रेशन, यहाँ पे हो, ठीक है कि नहीं, वो इमिग्रेशन EMI और IMMI वो तो पता है. तो यहाँ से माइग्रेट होकर अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ चला जाए तो ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक एलील जो इतना साल इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह के जो उसने बिल्डअप किया है वो इस वाले पॉपुलेशन में जैसे ऐड होगा तो यहाँ पे एक नया एलील आके ऐड हो गया है, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब होगा, 1 से प्लस हो जाएगा, लाइक दैट. ओके, तो इवोल्यूशन होगा. उसके जाने की वजह से वो अपना कैरेक्टर जो लेके जाएगा दैट माइट ब्रिंग सम चेंजेस over here, okay, in this population. So this is a factor which will disturb the constant. The second factor is a mutation, okay, large sudden change which can mutation के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था with that Lederberg's example of formation of the E. coli species
okay, which will be penicillin resistant. So if you bring such conditions and a new character comes up, so with a new character comes new allele, with new allele will come new allelic frequency, एक नया allele, एक नया जीन उस population में add होगा, ठीक है कि नहीं. So with the incoming of a new allelic character or with the expression of a new alleles, we can say a new allele has been added to that particular population due to mutation, and addition of a new allele will disturb the constant, so evolution is occurring. Okay, so mutation is another factor. Third factor is considered as genetic drift. Genetic drift में हम लोग founders effect के बारे में बात करेंगे. Okay, genetic drift क्या है? The change in gene frequency by chance in a small population, छोटा सा population में by chance कुछ जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा, उसके लिए एक इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फाउंडर्स इफेक्ट. एंड फाउंडर्स इफेक्ट को हम लोगों ने गैलापागोस आइलैंड के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. तो आई होप ये ऊपर का पोर्शन तुम लोग पॉज करके लिख लोगे. ओके, देन ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं. देयर आर एक्चुअली 4 फैक्टर्स. नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर्स लिखा है एंड 4th ये मिटा के लिखेंगे. देन वी विल सी आगे क्या क्या है, ठीक है. तो गैलापागोस आइलैंड में हम लोगों ने क्या देखा है कि अमेरिका के साउथ साइड में देयर वर सम ग्रुप ऑफ आइलैंड. ओके, जैसे कि ये सब आइलैंड है, आइलैंड ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर ऑन द साउथ साइड ऑफ द अमेरिका. इन आइलैंड्स का जो बीच का आइलैंड है, उस बीच के आइलैंड में देयर वाज अ सीड ईटिंग फिंचेस यहाँ पे रहता था. तो यहाँ पे जो सीड ईटिंग फिंचेस था, ठीक है, एक टाइम आया, ये सीड ईटिंग बर्ड्स है, सीड ईटिंग फिंचेस, जिनका बीक बहुत छोटा छोटा था. बिकॉज सीड ईटिंग बर्ड का बीक कैसा होता है, यू नो, पिजन का बीक कैसा होता है, छोटा होता है, लाइक दैट. देन यहाँ पे उनको क्या हुआ, आराम से पूरा फेवरिज्म मिला, ये लोग ठीक से अपना नंबर्स यहाँ पे ग्रो किया. लेकिन एक टाइम आया जब इन लोगों के बीच में कंपटीशन आया. तो जब कंपटीशन आया, दे चूज नॉट टू कम्पीट बट टू कन्वर्ट. एडाप्टिव रेडिएशन, फ्यू ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम हियर वेंट देयर एंड दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग सम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. यहाँ पे जब रहते थे तो खाते थे क्या, सीड. जब यहाँ से यहाँ उड़ के गए, यहाँ पे जाके सीड नहीं मिला, क्या खाना पड़ा, फ्रूट्स खाना पड़ा. तो जब फ्रूट्स खाएंगे थोड़ा बहुत तो बॉडी में चेंज होगा. यहाँ से बोले कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ उड़ के गया, जाके यहाँ पे क्या खाने लगा है, इंसेक्ट्स खाने लगा है. जब इंसेक्ट खाने लगेगा कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा. तो बेसिकली क्या है, ये जो यहाँ का मेंबर्स है वो लोग उड़ उड़ के अलग अलग लैंड मास में जा रहा है और जाके दे आर डूइंग सम डिफरेंट एडाप्टेशन एंड ड्यू टू दैट एडाप्टेशन they are adding some new allele in this particular population. आज अगर मैं इस कंप्लीट एरिया का पॉपुलेशन या एलिलिक फ्रीक्वेंसी देखूं, तो पहले ये सब आइलैंड्स में फ्रूट ईटिंग फिंचेस, इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस नहीं था. इन सब आइलैंड्स में सीड ईटिंग फिंचेस ही था. लेकिन देन बिकॉज सेंटर आइलैंड में या जहां पे फूड बहुत अवेलेबल था, सीड बहुत अवेलेबल था, वहां पे कंपटीशन आ गया. सो दे चूज नॉट टू कम्पीट बट टू कन्वर्ट. सो सम ऑफ देम फ्लू टू दिस आइलैंड एंड दे choose to not eat seed but to eat what, fruits. So यहाँ का जो मेंबर्स है वही फाउंडर मेंबर है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लाइट एडाप्टेशन लेके कुछ स्लाइट चेंजेस ला रहा है. एंड ड्यू टू दो स्लाइट चेंजेस सम एलिलिक फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग, and that allelic frequency changing and their adaptation will bring some new characters in them. जैसे कि फ्रूट ईटिंग का जो बीक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सीड से, इंसेक्ट ईटिंग का जो है उसके थोड़ा और लंबा होगा और वाइड भी होगा, ठीक है. फिर यहाँ से कोई यहाँ आया जो यहाँ आके फिशेस खा रहा है, उसका और लंबा हो जाएगा, क्रेन टाइप. तो कुछ तो चेंजेस आ रहा है. विद दोस चेंजेस दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ वन सिंगल स्पीशीज. दे आर adapting, they are bringing some new alleles, and with those introduction of new allele the allelic frequency is changing. यही है founders effect, ठीक है. When one or few individuals are dispersed and become the founders of a new isolated population at some distance from their place of origin, ठीक है. कुछ members यहाँ से यहाँ उड़ के गया, जाके यहाँ पे adaptation किया करके एक पूरा घर परिवार यहाँ पे बना लिया, ठीक है क्या नहीं. रिप्रोडक्शन किया उनके जैसा और इंडिविजुअल्स आया तो लाइक दैट. ओके, तो इसी को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. अभी हम लोग नेचुरल सिलेक्शन तो क्या है पता है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. मेक नोट्स. सो यहाँ पे द फोर्थ फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. सो नेचर सिलेक्ट्स दोज वेरिएशन व्हिच आर हेरिटेबल. दैट मींस जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाएगा. एंड बिफोर आल्सो वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल सिलेक्शन मिलता है, सो इट गेट्स दैट रिप्रोडक्टिव बूस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. दैट मींस देयर अर्नड कैरेक्टर, देयर इवॉल्व्ड कैरेक्टर, इट कैन गो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. प्लस दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू, माने इन अ वेरी हाई नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ये लोग बना पाएगा और रिप्रोडक्टिव फिटनेस मिलेगा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा
नंबर्स ये लोग क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज दे विल लिव इन अ वेरी सुइटेबल condition. Okay, so natural selection, it depends on different environmental condition, different geographical location, is not it? The natural selection is not going to be same at all the places of the earth. At some places the natural selection will do one type of selection, at other geographical location it will do some other type of selection. Okay, so natural selection are of three types: stabilizing, directional, disruptive. Stabilizing में क्या बोला जा रहा है, जो mean character है, mean value is selected, ठीक है कि? So this can be one extreme value, this can be another extreme value. The twice PQ, the heterogeneous, ठीक है कि नहीं, allelic frequency will get more selected. The mean character value will get more selected. Okay. So example, human height. We see, so we have such a large number of population, human population, but there are tall individuals very few, like in comparison to the medium heighted individual, the tall individuals are also very few. The short individuals are also very few. So in terms of human population, we can say that the mean value, the medium heighted population, the medium heighted individuals have got the more selection. Okay, in overall scenario, पूरा अर्थ का अगर हम लोग देखें, in that overall scenario, जो medium heighted individuals है उनको नेचर ने ज्यादा सिलेक्शन दिया है, इसलिए मीडियम हाइटेड इंडिविजुअल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टॉल और ड्वार्फ ह्यूमन बीइंग्स. डायरेक्शनल, इधर टॉल और ड्वार्फ, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, तो ये होमोजाइगस देखो इस तरफ शिफ्ट किया है, उस तरफ शिफ्ट किया, ये बीच का था, तो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव सिलेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाइक इन द एरियाज व्हिच आर मोर पोल्यूटेड, वहां पे कौन सिलेक्ट होगा, द डार्क वन विल गेट सिलेक्टेड, और जहां पे पोल्यूशन कम है वहां पे व्हाइट वन विल गेट सिलेक्टेड. बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी एक्सट्रीम कैरेक्टर, बीच का कुछ यहाँ पे नहीं होगा, ईदर ऑफ द टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स विल गेट सिलेक्टेड. एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. ठीक है. डिसरप्टिव फेवर्स बोथ द पेरिफेरल कैरेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम फॉर्म सिलेक्ट होगा, टॉल और ड्वार्फ. ठीक है, दोनों सिलेक्ट होगा. मीडियम हाइटेड इंडिविजुअल्स को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, टॉल को भी मिलेगा, ड्वार्फ को भी मिलेगा. उसको हम लोग डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन डिस्टर्ब द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. किसी एरिया में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का वो है p स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq प्लस q स्क्वायर, लेकिन वहां का नेचर 2pq को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है, तो p स्क्वायर एंड q स्क्वायर का क्या होगा, वैल्यू कमेगा तो 1 क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, 1 क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा, लाइक दैट. तो दिस इज in that way it is going to disturb the Hardy-Weinberg principle, which shows evolution has been happening at a particular area. ठीक है, so after Hardy-Weinberg principle एक पोर्शन है तुम लोग का एनसीईआरटी में जो है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, जो तुम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा है, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स जो एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा तुम लोगों ने. ठीक है, तो वो पोर्शन इजी है, तो मैं अभी डायरेक्टली ह्यूमन इवोल्यूशन पे मैं चलता हूं. ठीक है, इसका नोट्स बना लो. सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन. एंड ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. प्रायर टू एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्रिक मैन एंड ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन. दीज आर द 3 पार्ट्स इन विच ह्यूमन इवोल्यूशन इज डिवाइडेड. ओके, नाउ हम लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन का जो एक क्लासिफिकेशन, जो एक रूट वे बनाया है, वो बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फॉसिल्स दैट वी हैव गॉट. आज अगर हम लोग को कोई और फॉसिल भी मिलता है, ठीक है, कहीं और से, तो हम लोग इनके बीच में भी उसको प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, जो भी फॉसिल हम लोग को मिला है उस फॉसिल का हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डेटिंग किया. इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक टू फाइंड आउट द एज ऑफ अ फॉसिल. उससे हम लोग को फॉसिल का एज पता लगता है, और उस एज जो हम लोग को पता लगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इनको प्लेस किया है. उस प्लेसमेंट के हिसाब से कुछ फॉसिल जो हम लोग को मिला है उनको हम लोगों ने प्रायर टू एप मैन रखा है. कुछ फॉसिल्स को हम लोगों ने एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्रिक मैन रखा है. जो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ वो मैं ये मिटा के जब लिखूंगा उसमें कंटिन्यू होगा, एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्रिक मैन, एंड लास्ट में आएगा ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन जो है हम लोग. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमिनिड्स ड्रायोपिथिकस से. ठीक है, ड्रायोपिथिकस वाज कंसीडर्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एप्स एंड मैन. 24 मिलियन ईयर्स एगो ये लोग था. तो जो इनका फॉसिल हम लोग को मिला है, जब उसका रेडियो एक्टिव डेटिंग किया तो 24 मिलियन ईयर्स एगो का हम लोगों को एज इसका बताया है. MYA माने मिलियन ईयर्स एगो. यहां से एक ब्रांच चला गया जो बना क्या, एप्स, एंड दूसरा ब्रांच आया टुवर्ड्स द ह्यूमन इवोल्यूशन. इसलिए यहाँ पे लिखा है होमिनिड इवोल्यूशन. होमिनिड माने ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ आ गया है. ठीक है, अच्छा, उसमें हम लोग को 2 फॉसिल मिला है. रामापिथेकस अफ्रीका से, सिवापिथेकस एशिया से.
शिवालिक हिल्स ऑफ हिमालय से हम लोग को शिवापिथेकस का फॉसिल मिला। एंड ये जो दोनों फॉसिल मिला, ये दोनों फॉसिल एक ही टाइम का बताया जाता है, दैट इज 10 to 14 मिलियन ईयर्स एगो का। एंड इनका कैरेक्टर्स भी काफी बहुत सेम था इन दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों ही हम लोग मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग जगह जरूर रह सकता है, लेकिन एक ही टाइम का ह्यूमन का एंसेस्टर्स रहा था, ओल्डेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। ओके, इनसे इवॉल्व होके हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो आ जाएगा एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्रिक मैन में, जिसका और भी ब्रांचेस होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कैरेक्टर्स देखो, लिव्ड इन अफ्रीका, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म जिसमें ह्यूमन का ज्यादा कैरेक्टर था एंड एप्स का कम, स्मॉल साइज ब्रेन, वॉक्ड अपराइट माने बॉडी इरेक्ट होने लगा था 4 पैरों पे, क्वाड्रूपेडल लोकोमोशन करना छोड़ दिया था, बाइपेडल करना स्टार्ट किया था, 3 to 5 फीट टॉल, ज्यादा इतना हाइट नहीं था। 5 मिलियन ईयर्स एगो इसका फॉसिल हम लोग को मिला। इससे हम लोग कंसीडर करते हैं 2 ब्रांचेस निकला, एक ए रोबस्टस जो हो चुका है एक्सटिंक्ट हो गया है, और दूसरा ये लोग भी एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन इनका फॉसिल हम लोग को मिला है, ये मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। इससे और कोई आगे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ इस ब्रांच से, लेकिन इस ब्रांच से आगे इवोल्यूशन हुआ है ए अफ्रीकानस से। सो ए अफ्रीकानस का आगे क्या इवोल्यूशन हुआ और आगे इससे क्या क्या ह्यूमन का फॉर्म्स आया, इससे कोई ह्यूमन का फॉर्म नहीं आया, ये डिवीजन हुआ और फिर ये एक्सटिंक्ट हो गया, मर गया, लेकिन इससे ह्यूमन का फॉर्म्स आया जिससे आज हम लोग खड़े हैं। तो इसका और आगे क्या क्या आया वो अभी पढ़ेंगे, इसका नोट्स बना लो। यहाँ देखो हम लोग ए अफ्रीकानस जो छोड़ा था उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। ए अफ्रीकानस वो था एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्रिक मैन तक, वो यहाँ तक आएगा। उसके अंदर हम लोग को फॉसिल मिला है होमो हैबिलिस जिसका लार्जर ब्रेन था, क्रेनियल कैपेसिटी वाज 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ये सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। 2 मिलियन ईयर्स एगो इनका फॉसिल 2 मिलियन ईयर्स एगो का डेटिंग देता है। बाइपेडल लोकोमोशन, धीरे धीरे ये लोग अपराइट होके 2 पैर पे चलने लगा था पूरी। यूज टूल्स, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज टूल मेकर, ठीक है, ये लोग स्टोन से टूल्स बनाता था जिसके मदद से हंटिंग वगैरह करता था। होमो हैबिलिस का नेक्स्ट जो फॉसिल हम लोग को मिला है वो है होमो इरेक्टस, 1.7 मिलियन ईयर्स एगो इट वाज बिलीव्ड दे यूज्ड टू लिव इन दिस अर्थ। क्रेनियल कैपेसिटी उनसे बेटर, सो क्रेनियल कैपेसिटी बेटर हो रहा है माने इवोल्यूशन हो रहा है। 900 to 1140 सीसी। यूज्ड फायर, पहला जो जिसने वो स्टोन रगड़ के फायर बनाया। स्टोन टूल्स, ओके, स्टोन टूल्स बनाया जिसके मदद से हंटिंग करता था। कंप्लीटली बाइपेडल लोकोमोशन, 5 फीट हाइट था। होमो इरेक्टस से हम लोगों को जावा एंड पेकिंग मैन बोल के हम लोग को मिला है, ठीक है, जावा एंड पेकिंग मैन बोल के हम लोग को मिला है। जावा एंड पेकिंग मैन जो है 50,000 ईयर्स एगो माना जाता है, जो होमो इरेक्टस का ही एक टाइप है। जावा एंड पेकिंग मैन से फिर से 2 ब्रांच निकला है, एक निएंडरथल मैन जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, एक्सटिंक्ट तो सभी हो चुका है, लेकिन ये मतलब बेसिकली रूट कि मॉडर्न ह्यूमन कहां से आया, वो रूट क्या है। जावा एंड पेकिंग मैन का एक ग्रुप निएंडरथल मैन, ये निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नोन मैन और मॉडर्न मैन माने हम लोग, ये 3 आएगा किसके अंदर, ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन के अंदर आएगा, जो है थर्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है जावा एंड पेकिंग में, उससे जो भी आगे बना वो ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन में आएगा। निएंडरथल मैन, क्रेनियल कैपेसिटी इनसे बेहतर, 1300 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। प्रोग्नेथस फेस, प्रोग्नेथस फेस माने बंदर के जैसा, ये वाला जो है वो प्रोट्रूडेड है, बंदर का ये वाला जो प्रोट्रूडेड है, हमारा जो है वो प्लेन है ऐसे, ठीक है कि नहीं। और प्रोट्रूडेड जो माने प्रोग्नेथस फेस बिकेम एक्सटिंक्ट 30,000 ईयर्स एगो। एक और ब्रांच गया जिसको क्रोमैग्नोन मैन बुलाते हैं, ठीक है, अर्ली फॉर्म ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। क्रोमैग्नोन मैन से बना है मॉडर्न ह्यूमन जो है हम लोग, जो लास्ट में मैं लिखूंगा। अर्ली फॉर्म ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज लेफ्ट इलाबोरेट केव पेंटिंग्स, जहां से इनका फॉसिल मिला वहां पे बहुत सुंदर केव पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिलता था, जहां से इनके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग को पता चला कि कैसे रहता था, केव्स में रहता था, ये सब पता चला। ऑर्थोग्नेथस फेस, हमारे जैसा फेस एकदम सामने से प्लेन, ये जो प्रोट्रूडेड नहीं है, जो प्लेन है, ठीक है। और क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी भी ज्यादा था। इस क्रोमैग्नोन मैन से बना है मॉडर्न मैन, माने अभी अगर मैं इस क्रोमैग्नोन मैन से ऐसे करके नीचे एरो दूं, एरो देके लिखूंगा तो मैं मॉडर्न मैन लिखूंगा, तो उसके बारे में मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। मॉडर्न मैन में इधर मैं लिख देता हूं, यहां तक नोट बना लो। सो यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न मैन का कैरेक्टर्स लिख दिया है। क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, कल्टिवेटेड प्लांट्स,
एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह स्टार्ट किया था, हैज स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट, दे कुड यूज मोर ऑफ देयर ब्रेन्स एंड दे कुड मेक बोट्स एंड ऑल विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन लैंडमास टू अनदर, एंड हेंस देयर पॉपुलेशन गॉट डिस्पर्स्ड इनटू डिफरेंट लैंडमास एंड देन दे अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली। जैसे कि आज हम लोग देखने में कैसे हैं और एक अमेरिकन देखने में कैसे है, लेकिन शायद वो अमेरिकन एंड हम लोग एक ही जगह से हम लोगों का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एक ही लैंडमास में हम लोग पहले थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, फिर हमारे एंसेस्टर्स ने बोट लेके कोई अमेरिकन कॉन्टिनेंट चला गया, कोई इंडिया आ गया, इंडिया जो आया वो इंडिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेवलप होने लगा, जो अमेरिका गया वो अमेरिका के जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली डेवलप होते गया। सो इसलिए हम लोगों में थोड़ा सा चेंजेस आया डिपेंडिंग अपॉन द एडेप्टेशन टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। इस तरीके का कोई स्पीशीज जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो मॉडर्न मैन का है, ठीक है। सो निएंडरथल मैन, ठीक है, निएंडरथल मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस, ठीक है, होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस, इसका है होमो सेपियंस सेपियंस, HSS, होमो सेपियंस सेपियंस, और ये है होमो सेपियंस, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है, ये है HS होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये 3 आएगा ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन में। यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन का डिस्कशन होता है खत्म। ये सब कैरेक्टर्स अच्छे से लिख लेना, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ध्यान से पढ़ना, उससे क्वेश्चन आता है, और जो जो इंटरेस्टिंग कुछ कैरेक्टर दिया है, पहला टूल किसने बनाया, पहला फायर किसने यूज किया, ये सब थोड़ा याद रखना, केव पेंटिंग किसने बनाया, ये सब कुछ कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे खत्म होता है, मेक नोट्स, थैंक यू।